Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि हम डिप्लोमा मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन बताया था कि जब आपको इंटीग्रेशन करने को आता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मेथड में, तो उसकी बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके एल्जेब्रिक एप्लीकेशंस क्या हैं अदर कोर ब्रांच में। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं डेली लाइफ में या अदर कोर ब्रांचेस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना, है ना। सपोज अगर आपने कभी देखा हो, आपने प्रीवियस कभी पढ़ा हो, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन में हम करते हैं कि जो भी हमें फंक्शन दिया होता है, जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आता है, उसकी पावर इंक्रीज होती है। इंटीग्रेट मतलब इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंटीग्रेशन हो गया। अब आप देखिए एडवाइस, एंटी डेरिवेटिव्स एंड इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंटीग्रेशन के सीखने के, राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज indefinite integration notation for antiderivatives, use basic integration rules to find antiderivatives, find a particular solution of a differential equation। antiderivatives क्या होते हैं, to find a function capital F whose derivative is f of x is equal to 3x square, you might use for your knowledge of derivatives to conclude that f of x is equal to x cube because d of dx x cube का differentiation क्या होगा 3x square। the function f is an antiderivatives of small f। definition of antiderivatives, a function capital F is an antiderivatives of small f on an interval I when f dash x is equal to f of x for all x in belongs to I मतलब इंटीजर। ये हो गया एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में। और ब्रीफ description, note that capital F is called an antiderivatives of f rather than the antiderivatives of f. To see why, observe that f1x is equal to x cube, f2x is equal to x cube minus 5 and f3x is equal to x cube plus 90 plus 97। कहीं ना कहीं हमें तीन फंक्शन दिए हैं, उन तीन फंक्शन की इक्वेशन दिए। all are derivatives of f of x is equal to 3x square। in fact, for any constant c, the function f of x is equal to x cube plus c is an anti-derivatives of f। इस टाइप की कंडीशन एंटी डेरिवेटिव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आगे using theorem 4.1 you can represent the entire family of antiderivatives of a function by adding a constant to a known antiderivatives। for example, knowing that dx square is equal to differentiation of x square का with respect to x हो जाएगा 2x, you can represent the family of all antiderivatives of f of x is equal to 2x by, suppose एक दूसरा फंक्शन लिया g of x, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी, family of all antiderivatives of f of x is equal to 2x where capital C is a constant। the constant capital C is called the constant of integration। अब देखिए द फैमिली ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट बाय g is the general antiderivatives of f and g of x is equal to x square plus c is the general solution of the differential equation। तो g dash x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। a differential equation in x and y is an equation that involves x comma y and derivative of y। for instance, y dash is equal to 3x and y dash is equal to x square plus 1 are example of differential equation। solving a differential equation, find the general solution of the differential equation y dash is equal to 2। solution क्या होगा, to begin you need to find a function whose derivative is 2। one such function is y is equal to 2x। 2x is an antiderivatives of 2। now you can use theorem 4.1 to conclude that the general solution of the differential equation is y is equal to 2x plus c। this is called a general solution। देखिए इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज द ग्राफ ऑफ द सेवरल फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x प्लस सी आर शो इन फिगर 4.1। हमने एक इक्वेशन ली है जिसको हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है।
नोटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? नोटेशन फॉर एंटी डेरिवेटिव्स when solving a differential equation of the form dy upon dx is equal to f of x, we can write also dy upon dx dy is equal to f of x dx। इस तरीके से अगर हम किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, उसको जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो दिस इज अ द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग ऑल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और indefinite integration and is denoted by integration sign। this is a integration sign। ये देखिए इस तरीके से आपको जनरल सोल्यूशन डिनोटेड करके दिए, इस तरीके से हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स क्या होते हैं? द इनवर्स नेचर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैन बी वेरीफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग f dash x फॉर f of x इन द इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेशन टू ऑब्टेन इंटीग्रेशन का साइन f dash x dx इज इक्वल टू f of x plus c integration in this inverse of differentiation। Moreover, if integration f of x dx is equal to f of x plus c, then d upon dx bracket integration का sign f of x dx is equal to f of x differentiation in the inverse of integration। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये अप्लाइंग द बेसिक इंटीग्रेशन रूल, किस तरीके से हम किसी भी सिंपल फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको उनके बेसिक फॉर्मूले याद हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया है, 3x को इंटीग्रेट किया तो उसका फाइनल आंसर आया 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बेसिक इंटीग्रेशन रूल, ओरिजिनल इंटीग्रल, उसके बाद रीराइट, इंटीग्रेट एंड सिंप्लीफाई। इस तरीके से हम 4 स्टेप में किसी भी सिंपल इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी होता है। तो यू हैव ऑलरेडी सीन द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेट f of x dx हैज मेनी सॉल्यूशन ईच डिफरिंग from the others by a constant। This means that the graphs of any two antiderivatives of f are vertical translation of each other। इनिशियल कंडीशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन को हमने ग्राफ के थ्रू बताया है। देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से हमने एक इक्वेशन ली 3x स्क्वायर माइनस 1, उसको इंटीग्रेट किया और कहीं ना कहीं उसको हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया। ये और भी कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के और भी एग्जांपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये अनदर एग्जांपल हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि हम इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप के फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस मेन बेसिक थिंग आपको यही याद रखनी है जब आप इंटीग्रेशन को करें कि आपको जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं और जो इसके रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है, फिर आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, बेसिक रूल्स और फॉर्मूले के बारे में जाना, ग्राफ के थ्रू उसको सीखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में डीप में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ टेक केयर, स्टे